میٹرک کا ایگزام تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آئیے، میں محمد شاہد انور اسپیشل اردو کلاسز کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں نے اردو درخشاں بک کا پہلا چیپٹر اس سے پہلے پڑھا چکا، یعنی پہلا چیپٹر حمد خدا عز و جل کا خلاصہ کر چکا ہوں، اور آج میں اسی کلاس کا سوال اور جواب کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے اور سوال و جواب کو توجہ سے سنیے اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ توجہ اور دل جمعی کے ساتھ کلاس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کو خود بخود یاد ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے حمد خدا عز و جل کے متعلق تمام نچوڑ کو بتا دیا ہوں۔ یعنی حمد خدا عز و جل ایک حمد ہے جس کا مصنف شبنم کمالی ہے، اور شبنم کمالی کے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ آج اسی شبنم کمالی کے متعلق سوال و جوابات کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے سوال و جوابات کو دیکھیے کہ سوال کیا کر رہے ہیں اور اس کا جواب کیا ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی قدم چلے گی۔ آئیے شبنم کمالی کے متعلق پہلا سوال کیا ہے۔ یاد رہے کہ پہلا سوال جو ہے پوچھا جا رہا ہے کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے۔ جی دوستو، سوال ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے۔ تو یاد رہے کہ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا ہے۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا ہے۔ یعنی شبنم کمالی کا اصل نام جو ہے وہ مصطفیٰ رضا ہے، اور شبنم کمالی جو ہے مشہور نام ہے، کیونکہ شبنم کمالی نے اپنے شعر کے آخری مقطع میں جو نام استعمال کیا ہے وہ صرف شبنم استعمال کیا ہے، مصطفیٰ رضا نہیں کیا۔ اس لیے شبنم کمالی جو ہے شبنم کمالی کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ اس کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ جی ہاں۔ آگے دوسرا سوال ہے شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے۔ ہم نے تخلص کے بارے میں بتا دیا کہ تخلص کسے کہتے ہیں۔ آئیے آج بھی میں بتا دیتا ہوں کہ تخلص اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں شاعر اپنے شعر کے آخری مقطع میں جو نام استعمال کرتا ہے اسی نام کو تخلص کہتے ہیں۔ تو جی سوال ہے شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے، تو اس کا جواب ہے شبنم۔ کیا ہے؟ شبنم۔ جی شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے؟ تو شبنم، جبکہ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے اور شبنم کمالی کا تخلص شبنم ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوتا جائے گا۔ آگے تیسرا سوال ہے شبنم کمالی کی پیدائش۔ جی شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو یاد رہے شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 میں ہوئی۔ 22 جولائی 1938 میں ہوئی۔ جی شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے چوتھا نمبر میں شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی۔ شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو یاد رہے شبنم کمالی کی پیدائش سیتا مڑھی میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ سیتا مڑھی میں ہوئی، جو کہ بہار راجیہ کے ایک ضلع ہے جسے ہم سیتا مڑھی کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی سیتا مڑھی میں شبنم کمالی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس لیے سوال جو پوچھا گیا ہے شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی، تو اس کا جواب ہے سیتا مڑھی میں۔ جی اگلا سوال ہے 5واں نمبر میں شبنم کمالی کی پیدائش کس ریاست میں ہوئی۔ تو یاد رہے کہ ریاست کہتے کس کو ہیں، تو ہم آسانی سے سمجھیں ریاست ہم جس کو ہندی میں راجیہ بولتے ہیں اور انگلش میں اسٹیٹ بولتے ہیں، ٹھیک اسی کو اردو میں جو ہے ریاست کہتے ہیں۔ تو سوال ہے شبنم کمالی کی پیدائش کس ریاست میں ہوئی، تو جواب ہے ریاست بہار میں ہوئی۔ ریاست بہار میں ہوئی، یعنی شبنم کمالی کی پیدائش راجیہ بہار میں ہوئی، جس کو اردو میں ریاست کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے 6 نمبر میں، سوال یہ ہے شبنم کمالی کی پیدائش بہار کے کس ضلع میں ہوئی۔ بہار کے کس ضلع میں ہوئی؟ تو یاد رہے شبنم کمالی کی پیدائش ضلع سیتا مڑھی میں ہوئی۔ جی
शबनम कमाली की पैदाइश जिला सीतामढ़ी में हुई। जी, अगला सवाल है 7 नंबर में, नज्म हम्द में किसकी तारीफ की गई है? नज्म हम्द में किसकी तारीफ की गई है? जो हम्द हमारे निसाब दरख्शा हिस्सा 2 में पहला चैप्टर है, जिसका नाम है हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल। जिस हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल का ताल्लुक हम्द से है, उसी हम्द में किसकी तारीफ की गई है? तो याद रहे, खुदा की तारीफ की गई है। जी हाँ दोस्तों, हम्द में खुदा की तारीफ की जाती है, इसलिए सवाल जो किया गया है नज़्म हम्द में किसकी तारीफ की गई है, तो इसका जवाब है खुदा की। अगला सवाल है 8वां नंबर में, पूछा जा रहा है कि आपके निसाब में शामिल, जी हाँ, आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन है? हम्द एक लेख है और उसका लेखक कौन है, जिसको हम उर्दू में मुसन्निफ कहते हैं। तो याद रहे, आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन है, यानी लिखने वाले कौन है? तो जवाब है शबनम कमाली। जी, जवाब क्या होगा? शबनम कमाली। आगे है 9वां सवाल, हम्द के लुग़वी माना क्या है? उर्दू में लुग़त होता है और इसी को इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हैं। जी, उर्दू में जो पूछा जा रहा है कि हम्द के लुग़वी माना क्या है, तो हम्द के लुग़वी माना है खुदा की तारीफ। खुदा की तारीफ। हम्द का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ का मतलब एक का दूसरा नाम, एक का दूसरा नाम। जैसे हम्द भी उसी को कहेंगे और उसका मुतरादिफ सना होगा, उसी को कहेंगे, जिसका माना दोनों सेम होगा। हम्द के माना खुदा की तारीफ और सना के माना खुदा की तारीफ, यानी लफ्ज़ 2 है, माना एक ही है। जिस तरीके से हम और आप इस्तेमाल करते हैं, जल कहें तो पानी, वाटर कहें तो पानी, यानी जल का मुतरादिफ वाटर है, वाटर का मुतरादिफ जल है। ठीक उसी तरीके से हम्द का मुतरादिफ सना है। समझ गए? जी। आगे है बज़्म कायनात में, बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? याद रहे, बज़्म कायनात में खुदा का अक्स है। क्या है दोस्तों? अक्स है। जी, 11 सवाल हमने मुकम्मल किया। आगे मैं बताने जा रहा हूँ 12वां सवाल। जी, 12वां सवाल है, हम्द में जुल जलाल किसके लिए आया है? जुल जलाल का मतलब होता है बहुत बड़ाई वाला। जी, हम्द में अगला सवाल है 12 नंबर में, हम्द में जुल जलाल किसके लिए आया है? तो अल्लाह के लिए आया है। किसके लिए आया है? अल्लाह के लिए आया है। और 13वां सवाल है, आकाश का मुतरादिफ क्या है? जी हाँ दोस्तों, आकाश का मुतरादिफ क्या है? तो जवाब है आसमान। जवाब क्या है? आसमान। जवाब क्या है? आसमान। आगे 14वां सवाल है, जो सवाल किया जा रहा है, बाबे फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? बाबे फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? जवाब है रिज़्क़। जवाब है रिज़्क़। अगला सवाल 15 नंबर में पूछा जा रहा है, अज़्ज़ा का मुतरादिफ क्या है? अज़्ज़ा का मुतरादिफ क्या है? अज़्ज़ा का मुतरादिफ जल होगा। क्या होगा भाई? जल होगा। याद रहे कि अज़्ज़ा का मुतरादिफ क्या है? तो जवाब है जल। अगला सवाल 16वां नंबर में है, सवाल है नूर की ज़िद क्या है? नूर का मतलब होता है रोशन, और इसका जो ज़िद है, जिसको हम जुल्मत कहते हैं, जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा। जी, नूर की ज़िद क्या है? तो जुल्मत। क्या होगा जवाब? जुल्मत। जवाब में क्या होगा? जुल्मत। आगे है 17वां सवाल, हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल किसकी तख्लीक है? तख्लीक का मतलब होता है पैदा करना, जिसे हम खालिक बोलते हैं। तो यानी हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल जिसने लिखा, उसी की पैदावार हम्द है, जिसे हम कहेंगे शबनम कमाली। यानी हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल किसकी तख्लीक है? तो जवाब आएगा शबनम कमाली की। जवाब क्या आएगा? शबनम कमाली की। अगला सवाल 18वां है, जो सवाल है
शबनम बेनवा का क्या मतलब है। शबनम बेनवा जो है हमद के आखिरी मक्ता में इस्तेमाल किया गया है, उसी का मुतालिक सवाल किया जा रहा है। तो शबनम बेनवा का क्या मतलब है। तो शबनम बेनवा का मतलब जो है शबनम की खामोशी है, शबनम की खामोशी है। यानी खुलासा ये याद रहे कि बेनवा का मतलब होता है खामोश। बेनवा का क्या मतलब होता है, खामोश। बेनवा का क्या मतलब होता है, खामोश। याद रहे कि उर्दू में अगर पूछ लिया जाए बेनवा का मतलब क्या है तो हम कहेंगे खामोश, लेकिन यहाँ पे शबनम के साथ बेनवा जुड़ा हुआ है, इसीलिए जवाब में आया शबनम की खामोशी। यानी शबनम बेनवा का क्या मतलब है, तो जवाब होगा शबनम की खामोश। अगर पूछा जाए कि बेनवा का क्या मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे खामोश। अगला सवाल 19 नंबर में, याद रहे शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस शय में सर्फ किया। जी हाँ दोस्तों, शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस शय में सर्फ किया, तो जवाब आएगा वाज़ व तबलीग। जवाब क्या आएगा, वाज़ व तबलीग। अभी मैं 19 नंबर तक का क्वेश्चन आपको बताया हूँ, सवाल व जवाब आपको बताया हूँ और अच्छे अंदाज में वाज़ह किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आप इस अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें कि आने वाले दिन आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, बल्कि आप इस क्लास को करके अभी ही तमाम क्वेश्चन यानी सवाल जवाब का हल करना जान जाएं। बाकी सवाल अगले क्लास में देंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।